analog devices for voltage measurement and current measurement. ठीक है? And now we will study resistance measurement. So let's talk about a potentiometer. ठीक है? A potentiometer is here in this case. Well, actually, before we study resistance measurement, we will study a few more voltage measurement devices. But before we go in there, let's study a potentiometer and a potentiometer instrument. So what is a potentiometer? A potentiometer is basically a voltage divider circuit. So what do I mean by voltage divider circuit? Assume that I have, let's suppose I have a 12-volt battery. Okay? Assume that I have a 12-volt battery. For this 12-volt battery, so let me put a blank slide here so I can work on it. So let's suppose we have a car battery, which is a DC 12-volt battery. Okay, 12 volt. And let's suppose we have two different types of instruments. A type of instruments requires 12 volt, and B type of instruments require 5 volt. But we have only one voltage source, which is 12 volt. Now, is there any way we can get 5 volt from a 12 volt supply? ठीक है? A type of instrument को तो मैं directly 12 volt से connection दे दूंगा. ठीक है? And that would be 12 volt. For a B type of instrument, it requires 5 volt instead of 12 volt. But my power supply is 12 volt. So what can I do? किसी student को पता है? Students? Students? Sorry, sir. नहीं पता? किसी को नहीं पता? So आप लोग कभी voltage divider circuit का नाम सुना है? Students? कोई मुझे रिस्पॉन्ड देंगे? सर हाँ सुना है Yes, सर. sir. नाम सुना है? कब फेसी में या जी सर. अच्छा अच्छा. So how does voltage divider circuit works? So let's suppose I have a 12 volt, and let's suppose I have two resistances. ठीक है? This is 12 volt. आप लोगों ने नाम सुना है voltage drop? Voltage drop का नाम सुना है? Yes, sir. Voltage drop, let's suppose this is R1 and this is R2. तो voltage drop across R1 क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है? V by I. So voltage drop, VD चले हम कह देते हैं, drop for, is equal to I R1. R. So voltage drop 1 will be IR1. That means, so before we talk about voltage drop, let's first clear some concepts regarding potential difference. Okay? So what do we mean by this positive and negative here, this 12 volt? What does that mean? Students, किसी को पता है, what is voltage? Students. Sir, energy required for electron to move from a negative to positive terminal. From negative to positive or from positive to negative? Sir, from negative to positive. Negative to positive, sir. अच्छा, मुझे ये बात बताएं, पानी है ना? ठीक है? If we have water और आप पहली छत पे खड़े हो और पानी फेंक दें पहले छत की हाइट से, तो वो पानी किधर को जाएगा?
फ्लो किधर करेगा? Sir, towards the डाउनवर्ड सर। टुवर्ड्स ग्राउंड जाएगा ना। yes, sir. तो हम क्या कहते हैं, ये जो हाइट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। व्हाई इज Yes, sir. इट फ्लोइंग डाउनवर्ड? व्हाई इज इट फ्लोइंग डाउनवर्ड? Due to sir at potential difference, sir. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट फ्लोर एंड द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। और अगर मैं उस पे चला जाऊं तो हम ये ऐसे कह सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर का पोटेंशियल ज्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट फ्लोर का पोटेंशियल ज्यादा है कंपेयर टू ग्राउंड फ्लोर। कैन वी से दैट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो Yes, sir. कैन आई से दैट फर्स्ट फ्लोर जो है उसका पोटेंशियल पॉजिटिव है कंपेयर टू ग्राउंड फ्लोर के, उसका पोटेंशियल नेगेटिव है, बिकॉज दैट शोज द पॉजिटिव मींस हायर potential and negative means lower potential. Students? Yes, sir. बोल सकते हैं. In terms of potential, when I define positive, मैं ये नहीं कह रहा कि ये charge positive है, मैं ये कह रहा हूँ in terms of potential मैं कह रहा हूँ. In terms of potential, एक positive potential है, एक negative potential है, तो the flow will be from positive to negative. अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि ये जो इलेक्ट्रिक, अभी मैंने आपको पानी की मिसाल दी है ना, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पे एक पाइप है जो कि जैसे घरों में होता नहीं है, जो बारिश का पानी एक पाइप के थ्रू छत से नीचे ग्राउंड पे आता है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अगर हम ये पानी और करंट को आपस में कंपेयर करें, पानी और करंट को, तो वोल्टेज किस चीज को कॉरेस्पॉन्ड करेगा इस केस में? कि पानी पहले छत के ऊपर बारिश हुई है, वहां पे पानी जो एक्युमुलेट हुआ है वो पानी जो है नीचे आएगा, उस पाइप के थ्रू नीचे आएगा ग्राउंड तक, ठीक है। इस सिनारियो में जरा मुझे बताएं कि अगर ये पानी की बजाय ये इलेक्ट्रिसिटी होती तो वोल्टेज क्या चीज होगी? पानी की केस में वोल्टेज क्या है, पानी की केस में करंट क्या है, पानी की केस में रेजिस्टेंस क्या है? तीन क्वांटिटीज है ना, V I R, ठीक है। ये तीन क्वांटिटीज पानी की केस में, यानी उसके इक्विवेलेंट क्या चीज होगा? जो मैं आपको एग्जांपल दिए, पानी फ्लो कर रहा है थ्रू द पाइप। सर, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के दरमियान जो हाइट है वो वोल्टेज है सर। जी बिल्कुल। और पानी पाइप जो है सर वो करंट डायमीटर और रेजिस्टेंस है। अच्छा, चले, पाइप जो है, पाइप का जो फ्लो को रेजिस्टेंस दे रहा है वो हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपने पाइप रेजिस्टेंसेस पढ़े हुए हैं ना फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Major losses और minor losses के बारे में. ठीक है, मेजर और माइनर। तो अगर कोई भी फ्लूइड पाइप के अंदर फ्लो करेगा सो इट विल एक्सपीरियंस सम रेजिस्टेंस, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन द वो रेजिस्टेंस जो है फंक्शन है ऑफ द सरफेस रफनेस प्लस इज अ फंक्शन ऑफ द डायमीटर ऑफ द पाइप। ट्रू? विस्कोसिटी भी, विस्कोसिटी पे भी, ठीक है। लेकिन विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी हम एज्यूम करते हैं कि विस्कोसिटी इज नॉट, क्योंकि करंट की विस्कोसिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, सो एंड व्हाट विल बी करंट? रेजिस्टेंस भी आपने बता दी, पोटेंशियल डिफरेंस भी बता दिए, व्हाट विल बी करंट? वाटर सर। वाटर। Flow of water. फ्लो, हाँ, फ्लो रेट जो है आपका, फ्लो रेट कि कितना पानी पर यूनिट टाइम में ट्रेवल करेगा थ्रू द पाइप, दैट इज योर करंट, ठीक है। सो वोल्टेज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट फ्लोर एंड द ग्राउंड फ्लोर। पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज, ठीक है। यानी वोल्टेज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। इस बात को समझ ले, पोटेंशियल नहीं है, इट्स द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल इज कॉल्ड वोल्टेज, ठीक है। यानी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज वोल्टेज। अब पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल से ये जो साइन है, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल, व्हेन वी रिप्रेजेंट द सर्किट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, सो पॉजिटिव पोटेंशियल मींस हायर पोटेंशियल,
negative potential means lower potential. So always our flow will be from higher potential to lower potential. When we talk in terms of potential, हम charge particles in terms of charge की बात नहीं कर रहे, हम in terms of potential की बात कर रहे हैं. ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है. ठीक है, सर्किट में तो सिर्फ एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है. सर्किट में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ना. ठीक है, Yes, sir. उसमें प्रोटॉन तो फ्लो नहीं करते ना. तो ये जो पॉजिटिव साइन है ये आपको पोटेंशियल बता रहा है कि भाई इस साइड का पोटेंशियल ज्यादा है, इस साइड का पोटेंशियल कम है, तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो जो होगी वो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगी. समझ आ रही है इस बात की? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये पॉजिटिव जहां पे लिखा हुआ है यहाँ पे सारे, जैसे कैपेसिटर में होता है ना, कैपेसिटर में एक पॉजिटिव प्लेट्स होती है एक नेगेटिव प्लेट होती है. ठीक है, या चले कैपेसिटर की एग्जांपल भी ठीक नहीं है, यानी इट्स नॉट लाइक देयर आर प्रोटॉन्स हियर और नेगेटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन्स है. इट शोज द पोटेंशियल. ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल मींस दैट दिस इज अ हायर पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल मींस दैट इट इज ए लोअर पोटेंशियल. दैट मींस अगर आप इसको फिजिकल फिनोमेना के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो आप जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है. फर्स्ट फ्लोर का पोटेंशियल ज्यादा है, सो वी विल कंसीडर द फर्स्ट फ्लोर एज पॉजिटिव पोटेंशियल, एंड ग्राउंड फ्लोर का जो है पोटेंशियल है वो नेगेटिव है क्योंकि कंपेयर टू फर्स्ट फ्लोर इसके पोटेंशियल लोअर है. सो द फ्लो ऑफ वाटर विल बी फ्रॉम द पॉजिटिव पोटेंशियल टू द नेगेटिव पोटेंशियल. यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब अगेन आप इन टर्म्स ऑफ हाइट सोचें. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हाइट सोचें. अगर ये ग्राउंड फ्लोर है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है. अगर ये ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हम कहेंगे कि ये भी सेम पोटेंशियल है, ये भी सेम पोटेंशियल है, ये भी सेम पोटेंशियल. ये ऑल पॉइंट्स जो हैं सेम पोटेंशियल. फॉर एग्जांपल मैं इसको 0 फीट कह देता हूं. ठीक है, और इसे मैं कह देता हूं 12 फीट है आपको समझाने के लिए. ठीक है, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो. तो 0 और 12 के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 माइनस 0 कितना हो गया? 12. 12. अगर फॉर एग्जांपल ये 10 फीट होता हमारा, हम फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के दरमियान जो है पोटेंशियल डिफरेंस, और फर्स्ट फ्लोर जो है 10 फीट पे है और सेकंड फ्लोर जो है वो 22 फीट पे है. ठीक है, तो दोनों फ्लोर्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 फीट. 12 feet. 12. अब समझ आ रही है ना Yes, चार्ज sir. पोटेंशियल डिफरेंस की? इसका जो चार्ज लेवल है और इसका जो चार्ज लेवल है, इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 12 है. यानी 12 वोल्ट मींस कि देयर इज ए डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ 12. ठीक है, अब अगर दरमियान में कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं है, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, and we assume that this is a perfect conductor, then there will be no potential drop. कोई potential change नहीं आ रहा. इसकी मिसाल ऐसी है कि फॉर एग्जांपल ये हमारी ग्राउंड फ्लोर है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है और ये हमारा जो है सेकंड फ्लोर है. ठीक है, ग्राउंड को तो हम 0 वैल्यू दे देंगे, 0 फीट. ठीक है, फर्स्ट फ्लोर जो है हमारे 10 फीट पे, सेकंड फ्लोर जो है हमारा 22 फीट पे. ठीक है, सो अब इस पॉइंट का विद रेफरेंस टू ग्राउंड इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10. 10. ठीक है, अच्छा, अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल, दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल. ठीक है, लेकिन इस दूसरे केस के लिए, सेकंड फ्लोर के लिए, now this become positive potential and this becomes negative potential. This is ये positive और negative जो है, this is basically relatively telling you that the second floor has a higher potential compared to first floor. Clear है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब इन दोनों के दरमियान potential difference क्या है? 12 feet या 12 unit potential difference है. ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं यानी B और C के दरमियान potential difference जो है वो 12 unit है. ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि B और D के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? Same है sir. 10 है. 0. 0. सेम लेवल पे दोनों का पोटेंशियल सेम है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है ना. ठीक है, यानी बोथ हैव द Yes, सेम sir. पोटेंशियल एनर्जी, सो देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस.
So that's why B and D, potential difference between B and D is 0. Same way, this is point A, B, D. All of them are at the same potential. Okay? So there is no potential difference between point A, B, and D. Okay? But let's suppose there is point C. When current passes, चलो मैं उल्टी side से आ रहा हूं. Let's start with this. This is point A. Is the at the चले हम इसे कह देते हैं point A. This point is point A. Point A and point B are at the same potential. Point C, same potential, because there is no resistance, capacitance, or inductor in between point A and B or point B and C. There is always a potential drop when there is an electric element in between any 2 points on the electric circuit. Now, between point C and D, there is a potential drop. There is a potential drop, and that potential drop, VD1, is equal to IR. V is equal to IR. Okay? So, for example, let's talk in terms of feet. Let's talk in terms of feet. Let's suppose this is 10 feet. And this one is higher potential, which is 22 feet. So what is the potential difference between point, चले मैं इसे point Z कह देता हूँ या point G कह देता हूँ, ground कह देता हूँ. What is the potential difference between point G and A? दोनों के दरमियान potential difference क्या है? 12 feet, sir. 12 feet या चले हम कह देते हैं 12 unit. बहुत ज़्यादा confusing नहीं करते. ठीक है? So 12 feet कह दे, जो भी, सिर्फ आपकी concept clear करना. ठीक है? So it's a 12 unit potential difference. अच्छा, point A और B के दरमियान कितना potential difference है? 0, sir. 0 units. B और C के दरमियान potential difference कितना है? 0 units. 0 unit है. C और D के दरमियान, let's suppose IR की values मैं डालता हूँ, and it comes out to be 2 unit. It comes out to be 2 unit. So C और D के दरमियान potential drop जो है 2 unit आया है. ठीक है? Yes, sir. Total potential difference कितना है? Total potential difference इन दो points के दरमियान 12 unit. 12 units. उस 12 unit में से अगर मैं 2 unit minus कर दूं तो ये बाकी कितना रह जाएगा? 10 units. 10 units. ठीक है? अभी मैंने आपको ये सारा सर्किट टर्मिनोलॉजी की सेंस में नहीं समझाया. मैंने आपको सारा इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फिनोमेना, फिजिकल पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया. अभी हम ये सारी कैलकुलेशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स. ठीक है? कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए और हम देखते हैं कि क्या वाकई में इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स पे ये फिनोमेना अप्लाई होता है या नहीं, जो अभी हमने डिस्कस किया. इज इट द सेम कॉन्सेप्ट और आर देयर एनी डिफरेंस? सो we start with positive potential. Okay, this is positive potential. This is negative potential, and let's say this is 12 volt. Okay, then let's call this A point. This is B point. This is C point. यहाँ पे एक resistance है जो कि है मिसाल के तौर पे 10 ohm. ठीक है? और फिर जो है दिस इज D point, और फिर हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है which is E point, which is this one is R1, this one is R2, and let's suppose R2 is 20 ohm. ठीक है? This is E point, and this one we call it G point, ground point. ठीक है? Sometime in electrical books it is represented like this. And this is your reference point, your ground potential point. Okay? Anyway, now let's do some simple calculation. पहले जो मैंने आपको potential की basis पे समझाया, पहले उसकी basis पे हम calculation करते हैं and we find out कि क्या होता है. ठीक है? So if point, what is the, चलिए for example अगर 0 को मैं 0 पोटेंशियल P नाम दे देता हूं और पॉजिटिव पॉइंट को मैं 12 P दे देता हूं, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 12 वोल्ट हुआ ना. तो B का पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा
B का पोटेंशियल क्या होगा? What will be the potential of B? 12, sir. 12, sir. So this will be 12p. What will be the potential of C? 12p. 12. So what will be the potential of D? We don't know. We have to do calculations. ठीक है? और हमें electrical laws से हमें पता है कि whenever current passes through a resistance, there will be a potential drop, and that potential drop will be equal to V drop will be equal to IR. ठीक है? Now to use this formula, I know the R1 value, but I do not know the value of current. So current की वैल्यू मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगा? R1 और R2 को सम करके एक स्टैंडर्ड सर्किट बना लूंगा. ठीक है? R1 और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R1 दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में ना. Yes, तो sir. R1 प्लस R2 जो हो जाएगा वो हमारे पास R total हो जाएगा. Yes, sir. So I can find out V is equal to I R1 R total. ठीक है ना? So Yes, sir. V की वैल्यू क्या है? 12 वोल्ट है. ठीक है? यानी इस रेजिस्टेंस से क्रॉस दिस RT इज 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान है, वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान. So I know that V is equal to 12 volt. I want to find out, and R total is equal to 30 ohm. ठीक है? So I will be equal to 12 divided by 30. ठीक है? So 2 divided by 6, 2 divided by 5. ठीक है? So 2 divided by 5 is equal to 0.4 ampere, I believe. ठीक कर रहा हूं कैलकुलेशन? कोई गलती कर रहा हूं मेरे दरमियान में? Yes, sir. ठीक है? So No, sir. ठीक So है. the same current जो कि अभी मैंने कैलकुलेट की है from positive to negative potential, and that current is equal to 0.4 ampere. The same current will be passing in this circuit, क्योंकि ये दोनों सर्किट तो equivalent circuits है ना. So I is equal to 0.4 ampere. ठीक है? यहां तक क्लियर है? Any issue, students? Clear, sir. ठीक है. अब हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे. नाउ वी विल कैलकुलेट VD, वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे. ठीक है? सो वोल्टेज ड्रॉप, हमारा फार्मूला क्या है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 विल बी इक्वल टू 0.4 एम्पेयर करंट एंड रेजिस्टेंस इज 10 इज इक्वल टू 4 वोल्ट. ठीक है? अब 12p में से अगर 4 में माइनस कर दूं तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? D पे पोटेंशियल मेरे पास क्या रह जाएगा? 8, sir. 8p. 8p रह जाएगा. और अगर E जो है 0p पे है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन D एंड E क्या रहेगा? 8 वोल्ट. ठीक है? क्योंकि 8p माइनस 0p इज इक्वल टू 8 वोल्ट्स. ठीक है? नाउ जस्ट टू कंफर्म आवर कैलकुलेशन, अभी हम देखते हैं कि क्या वाकई में ये 8 वोल्ट है या नहीं है. ठीक है? नाउ दिस वाज VD1, लेट्स फाइंड VD2. दैट विल बी इक्वल टू 0.4 इनटू 20 इज इक्वल टू 8 वोल्ट, जो कि हमने अभी लॉजिकली डिड्यूस किया है. अब अगर आप इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल अगर हम अप्लाई करें, सो देखें टोटल पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट D एंड E क्या है जो कि यहां पे मौजूद है, विच इज 12 वोल्ट. टोटल पोटेंशियल कितना है? 12 वोल्ट है. ठीक है? नाउ दिस टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2. अब 4 और 8 को अगर आप ऐड कर लें आपस में तो टोटल कितना बन रहा है? वही जो है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पॉइंट C एंड E which is equal to 12 volt. Any questions, student? यहाँ तक? No, sir. Clear, No, sir. ठीक है?
अब हम आते हैं पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट के लिए। अब बल्कि इसी सर्किट पे आप देख लें, मैंने आपको शुरू में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी थी कि गाड़ी की बैटरी है और गाड़ी की बैटरी जो है वो एक गाड़ी है जिसके अंदर दो तरह के इंस्ट्रूमेंट है, एक तो 12 वोल्ट पे चलते हैं और दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो है, बल्कि हम कहते हैं 3 इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट नंबर ए रिक्वायर्स 12 वोल्ट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट बी रिक्वायर्स 5 वोल्ट। चले हम पहले सिंपल केस लेते हैं, 12 वोल्ट और 5 वोल्ट, ठीक है। अब इस सर्किट को मैं कैसे डिजाइन करूं, हाउ शुड आई डिजाइन दिस सर्किट, और इस डिजाइन से मेरे मुराद ये कि व्हाट वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 शुड आई गेट, कि मेरे पास एक 12 वोल्ट आ जाए, 12 वोल्ट तो वैसे भी अवेलेबल है, लेकिन एक मेरे पास 5 वोल्ट आ जाए। सो व्हाट शुड आई डू? स्टूडेंट कोई बता सकते हैं? रेजिस्टेंस लगा के पोटेंशियल डिवाइडर। हाँ, पोटेंशियल डिवाइडर करेंगे, लेकिन व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2, कि एक मेरे पास 5 वोल्ट आ जाए और एक 5 वोल्ट आ जाए, ठीक है। जरा आप ये देखें, ये हमारे पास रेशियो है रेजिस्टेंसेस की ना, 1:2 रेशियो है। वोल्टेज हमारे पास कैसे डिवाइड हुए? 1:2 रेशियो सर। तो इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस की रेशियो होगी वही रेशियो वोल्टेज डिवीजन की भी होगी। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो अगर मैं इस 12 वोल्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूं, एक 5 हो तो दूसरी वैल्यू उसकी क्या होगी? 12 वोल्ट में 5 निकाला 7 आ जाएगी। सो 5 और 7 की जो रेशियो है, 5/7 की जो रेशियो है, बल्कि ठीक है, चले हम यहां पर इवन ये भी कर सकते कि एक को 5 ओम रख देते हैं और एक को जो है हम 7 ओम रख लेते हैं। Let me present again. अगर एक को मैं 5 ओम रख लूं, दूसरे को 7 ओम रख लूं, so let's see what would be the potential difference in these two across these two resistances. हम वही कैलकुलेशन कर देते हैं। R total की वैल्यू क्या होगी? V is equal to I। R total की वैल्यू हमारे पास 12 ओम हो जाएगी, ठीक है। और V जो है इनपुट वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट है, सो I की वैल्यू जो है हमारे पास 1 एम्पेयर हो जाएगी, ठीक है। नाउ करंट थ्रू दिस सर्किट इज 1 एम्पेयर। अब हम पहले R1 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखते हैं। सो VD1 विल बी इक्वल टू 1 एम्पेयर मल्टीप्लाई 5, ठीक है। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 जो है हमारे पास 5 वोल्ट आ जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 जो है R2 हो जाएगा, which will be equal to 1 multiply 7 equal to 7 वोल्ट आ जाएगा ना। तो हम ये अब कहेंगे कि पॉइंट, इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट। इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 7 वोल्ट, 7 volt. ठीक है, बिल्कुल सही है। अब जो मेरे पास दो इंस्ट्रूमेंट है उनको मैं कनेक्ट कैसे करूंगा? हाउ वुड आई कनेक्ट देम? ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ए को तो मैं ले लूंगा क्योंकि उसने तो 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट होना है, उसको तो मिसाल के तौर पे ये इंस्ट्रूमेंट ए है, एक यहां से मैं पॉइंट सी से एक ले लूंगा और दूसरा जो है पॉइंट ई से ले लूंगा। ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे टू इंस्ट्रूमेंट ए और मेरे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंस्ट्रूमेंट ए विल बी इक्वल टू 12 वोल्ट, क्योंकि पॉइंट सी और ई के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है 12 वोल्ट का है। इंस्ट्रूमेंट बी जो है रिक्वायर्स 5 वोल्ट, सो उसको मैं कैसे कनेक्ट करूंगा? मैं एक सी से कनेक्शन ले लूंगा या इस पॉइंट से, इससे मैं चले
एल एम कह देते हैं, इससे मैं नाम देता हूं। सो एल और एम के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट का। 5 volt. अब मेरे पास वोल्टेज सोर्स एक थी 12 वोल्ट की, और उस 12 वोल्ट को मैंने पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट की मदद से 2 वोल्टेज में डिवाइड कर दिए। एक 5 वोल्ट, यानी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए, 5 वोल्ट और 7 वोल्ट के हिस्सों में। 5 वोल्ट को मैंने इंस्ट्रूमेंट बी को दे दिए, और 7 जो 12 वोल्ट है वो तो मैंने डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट ए को दे दिए थे। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट? Yes, sir. ठीक है। अब हमारे पास सिंपल वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का फार्मूला क्या है कि वोल्टेज आउटपुट विच इज दिस वोल्टेज आउटपुट इज इक्वल टू R1 बाय, चलें यहां पर, लेट्स डू इट ऑन द स्लाइड, R1 डिवाइड बाय R total, R1 divided by R total, चलिए this is a potentiometer circuit, चलिए. So R1 divided by R1 plus R2, जिसे हम R total कहते हैं, into V input. ठीक है? अभी जैसे हमने किया था, जैसे VD1 जो है वो 5 divided by 5 plus 7, ठीक है, और V input, तो V 12 input volt. मेरे 12 वोल्ट है, सो 5 divided by 12 multiply 12 cancel equal to 5 volt. Clear? Yes, sir. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके स्टूडेंट का आता है कि सर ये तो बड़ा आसान है, ठीक है, अगर मुझे 5 वोल्ट चाहिए तो मैं एक रेजिस्टेंस 5 रख दूंगा, दूसरा 7 रख दूंगा, तो मेरे पास, अगर मुझे 3.3 वोल्ट चाहिए तो यहाँ पर मैं 3.3 वोल्ट लिख दूंगा, और यहाँ पर जो है मैं क्या आएगा, तकरीबन 8.5 लिख दूंगा रफली, ताकि टोटल 12 बन जाए। ठीक है, यहाँ पे जो इश्यू आता है, that issue has to do with energy dissipation. ठीक है, now चलें, let's remove instrument B, instrument A को remove कर देते हैं, और हम सिंपल एक ठीक है इंस्ट्रूमेंट बी को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए अब आपका सर्किट जो है, अब आपका पूरा सर्किट मॉडिफाई हो गया, योर सर्किट हैज मॉडिफाइड। ठीक है, अगर इस सर्किट को मैं सर्किट टर्मिनोलॉजी में रीड्रा करूं, जो प्रॉपर फॉर्मेट है, वो कुछ यूं सर्किट बनेगा कि वी हैव द पॉजिटिव पोटेंशियल, देन वी हैव R1, then we have R2, and then we have negative potential, and this is voltage V input, VIN. ठीक, अब ये जो B instrument है, it will have some impedance. Let's use resistance at this point. Students, जी सर। नजर आ रहा है Yes, ना? ठीक है, चलिए। जी सर। So this will be RB. Typically we will use word impedance, ठीक है, and I will explain impedance later on, but for now let's treat this impedance as simple resistance, ठीक है, and then this circuit will be like here, ठीक है, so this is point, this is A, this is B, this is C, this one let's call it L, this is M, this is D, this is E. Of course, these all points are all E,
E, and E. ठीक है? Now, if you have to analyze this circuit, ठीक है, how do we select these values of resistance? 5 and let's say ohm. This is your obvious choice. This is your obvious choice. If you want to split a 12 volt into 5 volt and 7 volt, this will be your obvious choice. सबसे पहला choice आपके ये होगा. But sometimes we don't use these values. ठीक है? We use, maybe we are using 500 to 700. ठीक है? Or maybe 5 kilo ohm, 7 kilo ohm, or some combination of this. Maybe 10 kilo ohm to 14 kilo ohm. Important thing ये है कि दोनों की ratio जो है 5 to 7 होनी चाहिए. But it can be 5 to 7 ohm, 5 ohm and 7 ohm. It can be 50 ohm and 70 ohm. It can be 500 ohm and 700 ohm. It can be 1 kilo ohm and 1.4 kilo ohm, and so on. As long as the ratio is the same, आपके पास जो 12 वोल्ट है वो उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगी. 5 और 7 वोल्ट की रेशियो में डिवाइड होगी. नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ठीक है, बट आप क्यों कह रहे हैं कि रेशियो सेम होनी चाहिए? वैल्यूज हो सकते हैं डिफरेंट हो सकता है आप मजबूर हो जाएं कि आप 5 और 7 वैल्यू ना यूज करें, बल्कि आप 500 एंड 700 वैल्यू यूज करें, या आप यूज करें 0.005 ohm and 0.007 ohm. Now that has to do with energy dissipation. ठीक है? कितने लोगों को, स्टूडेंट्स को पता है what is energy dissipation through a resistance? फार्मूला किसी को पता है? I square R. I square R. और I ये क्या square चीज़ R. है? जी, I square R कौन सी एनर्जी होती है? किसी को एग्जांपल पता है? हीट एनर्जी सर, जो हीट हीट एनर्जी होती है. बिल्कुल. आजकल तो वैसे भी सर्दियों का मौसम है. कोई मुझे कॉमन एग्जांपल दें. हीटर सर, हीटर. जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है. इलेक्ट्रिक हीटर. हाँ, जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसके अंदर रेजिस्टेंस कॉइल लगा होता है. उस रेजिस्टेंस कॉइल के अगेंस्ट आप वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं. ठीक है? और वो वोल्टेज और रेजिस्टेंस की बेस पे उसके अंदर कोई करंट फ्लो होगी. वो करंट की क्वांटिटी क्या होगी, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है. सो आपके जो सिंपल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है उसमें हम डीसी वोल्टेज यूज नहीं करते, हम जो होते हैं एसी वोल्टेज यूज करते हैं. और ये आपका हीटर का रेजिस्टेंस है RH. ठीक है? और यहाँ पे वापडा की वोल्टेज हम इज्यूम करते हैं RMS वैल्यू VRMS इज इक्वल टू 220 वोल्ट. ठीक है? नाउ व्हेन दिस 220 वोल्ट, और RMS मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन करके दिया था कि व्हाट इज RMS फॉर ए AC वोल्टेज. यस सर. जी, 4.707. वो 0.707 तो है, लेकिन लॉजिकली मैंने आपको क्या एक्सप्लेन करके दिया था? दिस इज द DC इक्विवेलेंट. ठीक है? ऑफ Yes, AC. दिस इज द DC इक्विवेलेंट ऑफ AC के मतलब अगर आप 220 RMS वैल्यू वोल्टेज एक रेजिस्टेंस RH में से गुजारेंगे तो वो जितनी हीट जनरेट करेगा वो हीट उतनी ही होगी कि अगर आप 220 वोल्ट DC करंट इस RH में से गुजारें. समझ आ रही है? सो हम कहते हैं कि DC इक्विवेलेंट ऑफ एन AC voltage is called RMS voltage, AC voltage. समझ आ रही स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सर 220 RMS का मतलब ये कि 220 DC दे रहे हैं वोल्टेज. हाँ, यानी वोल्टेज तो AC जा रहा है ना, लेकिन इस AC के अंदर उतनी एनर्जी है कि जितना 220 वोल्ट DC के अंदर जितनी एनर्जी होगी इस AC के अंदर उतनी ही एनर्जी है. इसका मतलब ये है. यस सर. ठीक है? यानी द एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 220 वोल्ट DC के बराबर. यानी इस AC सिग्नल के अंदर जितनी एनर्जी हम इस AC वोल्टेज के थ्रू हम जितनी एनर्जी गुजार रहे हैं, ठीक है, दैट एनर्जी इज इक्वल टू that energy is same as if we had applied 220 volt DC to this circuit. Okay, sir. ठीक है? यस. अब हमने जरा कैलकुलेट करना है. फॉर एग्जांपल आपके पास 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है ना.
ठीक है, लेट्स सपोज इट्स 1 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो हम जरा कैलकुलेट करते हैं कि ये 1 किलो ओम कितनी हीट एनर्जी जनरेट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, क्योंकि एनर्जी का हमारे पास एनर्जी का फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू सॉरी एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, ये फार्मूला है ना। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन आई की वैल्यू मेरे पास नहीं है। सो आई की वैल्यू मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगा कि V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, और आई की वैल्यू जो हो जाएगी V डिवाइड बाय आर, और आई इज इक्वल टू 220 डिवाइड बाय आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 किलो। सो आई इज इक्वल टू 220 डिवाइड बाय 1000। सो मेरे पास जो है 0.220 एम्पियर। So the amount of current that is passing through, अब चूंकि this is alternating current, so मैं एक एरो से नहीं, क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो रहा होता है कंटिन्यूसली। अल्टरनेटिंग का क्या मतलब है कि कंटिन्यूसली पोटेंशियल रिवर्स हो रहा होता है। सो हम ये नहीं कह सकते कि करंट इज ओनली फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि करंट कभी एक साइकिल में इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और दूसरे साइकिल में इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और फिर रिवर्स होगा, और फिर एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉरएवर until the power alternating current source is there with a frequency of 50 reversal per seconds. अब ये current, so there is a current flow of I is equal to 0.220 ampere current flow is there. अब इससे हम I square R की वैल्यू मालूम करते हैं। So E is equal to 0.22 square into 1000। ठीक है, 0.22 स्क्वायर से कुछ वैल्यू आ जाएगी, वो 1000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जितनी वैल्यू आएगी दैट अप्रोक्सीमेटली लेट्स सपोज इट कम्स आउट टू बी 48.4 48.4 किलोवाट। 48.4 वाट होगा, किलोवाट नहीं होगा, क्योंकि मैंने हाँ 48, सो 48.4 वाट हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपके घरों में टिपिकल हीटर होते हैं वो कितने एनर्जी के होते हैं, उसके ऊपर वाटेज लिखी होती है, अंदाजन कितनी होती है, किसी को पता है? एक कॉइल, एक जो रेजिस्टेंस कॉइल होती है वो कितने वाट की होती है, किसी को पता है? टिपिकली वो किलो वाट्स में होते हैं। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, बट आई विल से दैट जिस हीटर में एक कॉइल लगी होती है वो तकरीबन 1 किलो वाट होगी, जिसमें 2 लगे होते हैं दैट इज 2 किलोवाट, जिसमें 3 लगे होते हैं दैट इज 3 किलोवाट। ठीक है, दिस इज माय रफ एस्टिमेट। अब मुझे कोई बता सकता है कि 3 किलोवाट वाला जो हीटर होता है वो कितने एम्पियर करंट कंज्यूम करेगा 1 घंटे में? कोई मुझे बता सकता है? स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी हमारे पास एनर्जी है, चलिए बल्कि मैं कहता हूं कि आप उसका रेजिस्टेंस मालूम करें। मैं आपसे कहता हूं कि इसका रेजिस्टेंस मालूम करें। आपको मैं एक प्रॉब्लम देता हूं। प्रॉब्लम यह है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है विच इज रेटेड फॉर 1 किलोवाट, और इट इज रेटेड फॉर 1 किलोवाट प्रोवाइडेड दैट V इनपुट इज इक्वल टू 220 वोल्ट। 220 वोल्ट RMS पे उसका जो रेजिस्टेंस है, सॉरी उसकी जो हीट एनर्जी है, द हीट एनर्जी दैट इट रिलीजेस इज 1 किलोवाट और 1000 वाट। क्वेश्चन इज फाइंड हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस मालूम करें। कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट? V square by R। ठीक है, सो हमें पता है कि E इज इक्वल टू आई स्क्वेयर R है। ठीक है, सो we need to find R, लेकिन R तो हम मालूम करने के लिए हमें I की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब I की वैल्यू के लिए आपका जो फार्मूला है ठीक है, लेकिन मैं जरा स्टेप वाइज जाता हूँ। I का फार्मूला, I की वैल्यू निकालने के लिए मुझे RH की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन उसके लिए मुझे I की वैल्यू चाहिए। सो मैं आई विल यूज V इज इक्वल टू I R। ठीक है,
अब जो है चले मैं I फिर square R, sir, E equal to I square RH. अच्छा E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एच। अच्छा आगे क्या करेंगे? सर इसमें तो हमारे पास इजी है ना कि R is equal to I क्या है? नेट हो जाएगा। I is equal to V by R, तो I स्क्वायर की आई इज इक्वल टू वी बाय आर हो जाएगा, आर एच हो जाएगा, और उसके अंदर स्क्वायर की वैल्यू हम डाल देंगे। ठीक है, सो वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर एच स्क्वायर इनटू आर एच हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आर एच विल बी इक्वल टू ई डिवाइड बाय सॉरी वी स्क्वायर डिवाइड बाय ई। सो वी स्क्वायर मेरे पास क्या आ रहा है 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय ई की वैल्यू मेरे पास आएगी 1000। कैन somebody कैलकुलेट क्या वैल्यू आ रही है डिवाइड बाय जी, क्या वैल्यू आएगी? 48.4, sir. 48.4 ही आ रही है Watt. Ohm. क्या आ रही है? सर 48.4. 48.4 ओम 48 सॉरी ये तो कैंसिल नहीं हो 48.4 ओम ओहम। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, समझ आ रही है व्हाट इज आई स्क्वायर और हीट रिलीज। इसकी रीजन क्या मैं अभी आपको बताता हूं कि रीजन क्या, क्यों हम पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि आप आर की वैल्यू बाजू का अपनी मर्जी पे नहीं रख सकते, रेशो आपने 5 और 7 रखना है, लेकिन हो सकता है वो 5-7 रेजिस्टेंस वैल्यू ना हो, बल्कि हो सकता है 500 700 हो। सो इसकी रीजन ये है कि आपके जो टिपिकल रेजिस्टेंस होते हैं, एक आपके पास पावर रेजिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, और एक आपके पास स्टैंडर्ड जो सर्किट में यूज होते हैं, ठीक है, एक वो वाले रेजिस्टेंस है। जो आपके पास स्टैंडर्ड सर्किट में यूज होते हैं, जो आपने सर्किट बोर्ड पे देखे होते हैं, दे आर टिपिकली जो गोल गोल से नहीं होते, सिलेंडर टाइप के जिसके ऊपर बैंड्स लगे होते हैं, दे आर Yes, sir. टिपिकली Yes, sir. दे आर क्वार्टर वाट रेजिस्टर्स। ठीक है, अब क्वार्टर वाट का क्या मतलब है? पॉइंट यानी क्वार्टर वाट का मतलब है 1/4 वाट और 0.25 वाट 2.5 watt. रेजिस्टेंस। अब 0.25 वाट रेजिस्टेंस में से अगर आप ज्यादा करंट फ्लो करेंगे 0.25 यानी दिस इज ई वैल्यू इज 0.25 वाट, और ई वैल्यू किस चीज के बराबर है? आई स्क्वायर आर के बराबर है। ठीक है, सो इफ यू नो 0.25 वाट, और चलो मैं यहां पे आपके सामने कैलकुलेशन करता हूं थोड़ा सा। अब फॉर एग्जांपल मैं 5 ओम स्टूडेंट प्रेजेंटेशन नजर आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, अगर मैं इस 5 ओम रेजिस्टेंस में से 1 एम्पेयर करंट पास करता हूं, तो एनर्जी डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टेंस क्या होगी? 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 5. ओम, सो 5, कितने sir. होगी? 5 वाट होगी। जबकि रेजिस्टेंस रेटेड कितने वोल्ट वाटेज के लिए? 0.25 watts. तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि 1 किलो वाट के लिए रेटेड है, और आप ये चले वाट की बिजली है वो 220 है, वो एकदम 440 हो जाए, तो हीटर को क्या हो जाएगा, या बल्ब को क्या हो जाता है जब बहुत ज्यादा करंट उसमें से फ्लो करता है? Sir, burst हो जाता है तोड़ जल जाता है। हम कहते हैं कि हाँ जल गया। वो क्यों जलता है? क्योंकि उस रेजिस्टेंस में से, ठीक है अभी नमाज की ब्रेक देता हूं, उस रेजिस्टेंस में से इतनी करंट फ्लो होती है कि वो इतनी हीट एनर्जी जनरेट करता है कि वो रेजिस्टेंस मेल्ट हो जाता है, और हम कहते हैं कि वो रेजिस्टेंस जल गया, बल्ब जल गया या हीटर जल गया। समझ आ रही है इस बात की? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब अगर आपने लो करंट्स के लिए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट डिजाइन करना है, then you will use this potential divider circuit with quarter watts resistances के लिए।
अगर आपने हाई करंट्स के लिए डिजाइन करना है, देन यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट, ठीक है, लो करंट से मुराद क्या है, मिली एम्पेयर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, टेंस ऑफ मिली एम्पेयर्स, मे बी हंड्रेड्स ऑफ मिली एम्पेयर्स, मे बी नॉट 100 मिली एम्पेयर, टेंस ऑफ मिली एम्पेयर्स। लेकिन आपने थोड़ी कैलकुलेशंस करनी है। कहने का मेरा मतलब ये है कि व्हेन यू डू द पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, एक तरीका तो ये है कि आप पहले रेजिस्टेंस लगा लें, फिर उसको वोल्टेज दें और वो जल जाए, देन यू रियलाइज कि यू डिडंट सेलेक्टेड द प्रॉपर वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस, इवन दो रेशो आपकी ठीक है, लेकिन वैल्यूज ठीक नहीं है, क्योंकि द रेजिस्टेंसेस burned or melted because of too much heat energy release. So yeah, you will do those calculations. Students, Yes, sir. any question? No, sir. Clear, sir. Now these calculations are important, क्योंकि जब हम Wheatstone bridge discuss करेंगे तो उसमें हम हीटिंग, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस खुद हीट हो जाता है कैलकुलेशन के दौरान, then that can affect your measurement values. Take a 5-minute break, बस जल्दी से फर्ज पढ़ें, मतलब ये जल्दी से फर्ज तो वैसे भी है, जल्दी से नमाज पढ़ें और वापस आए, ठीक है। 5 मिनट चले, 7 मिनट ब्रेक। इस वक्त 4:04 बज रहे हैं, 4:10, 4:11 पे मैं दोबारा लेक्चर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। Okay. Okay, sir. जल्दी आए फिर, हरी अप।
अच्छा, हेलो। जी जी सर। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, सो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, अभी इस फार्मूले की आपको समझ आ रही है? स्टूडेंट्स, नो सर, सर ये जी कहें, कुछ क्वेश्चन पूछें। इसमें सर ये ई इन है। इनपुट जो है ये वोल्टेज है बेसिकली। वोल्टेज को या आप वी से रिप्रेजेंट करते हैं या ई से इस बुक में, ठीक है। ओके सो सर। ई आउटपुट जो है ये आपकी आउटपुट वोल्टेज है जो कि यहाँ पर है, ठीक है, दिस ये वोल्टेज, ठीक है। और ई इनपुट जो है आपकी ये वाली वोल्टेज है, ठीक है, सम वैल्यू, ओके ठीक सर। है। तो वो कह रहे हैं कि ई आउटपुट डिवाइड बाय ई आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू आर एक्स। जरूरत से थोड़ा सा यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझ लें, विच इज पोटेंशियोमीटर डिवाइस। पोटेंशियोमीटर आप लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज में पोटेंशियोमीटर यूज किया। व्हीटस्टोन ब्रिज जो एफएसी में एक to find the unknown resistance using a Wheatstone bridge and a potentiometer, याद है ऐसे एक्सपेरिमेंट एफएसी में आप लोगों ने किया था? इस्तेमाल जी किया, सर। ईटी में भी इस्तेमाल किया था। अच्छा, तो किसी को पता है व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर? सर इससे हम रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर। देखिए, अगर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये चलिए मैं इस तरह से ड्रा कर देता हूं, सॉरी। और लेट्स सपोज ये 10 ओम है, ये रेजिस्टेंस 10 ओम है, ठीक है ना। यानी पॉइंट ए और बी के दरमियान जो है 10 ओम है, फाइन, इसमें तो कुछ नहीं, बेसिक वो है ना, ठीक है। अब पहले पोटेंशियोमीटर को समझें। व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस में इसे कैसे बना सकता हूं? फॉर एग्जांपल यहां पे मैं 10 ओम लिख देता हूं, मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं सी, ठीक है। और ये सी जो है मैं इसके बिल्कुल मिडल में टच कर देता हूं, ठीक है। समझ आ रही है ओके इस बात? सर। यस सर। अब कोई मुझे बता सकता है कि अगर ये बिल्कुल मिडल में है तो ए और बी के दरमियान तो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, लेकिन ए और सी के दरमियान कितने ओम का रेजिस्टेंस डेवलप होगा पॉइंट ए एंड सी के दरमियान? 5 ओम। 5 ओम। चलें, अगर मैं इस चीज को लेट्स सपोज स्लाइड करके मैं यहां पे ले आता हूं, अब ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस कितना है? 0 जीरो। 0 ओम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मैं यहां पे ले आऊं, अब ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। 10 ओम 10 ओम। अब आप लोगों ने ये डीजेस जो होते हैं टीवी पे देखे होंगे, ठीक है, उनके पास बहुत से स्लाइडर लगे होते हैं, स्लाइड्स होते हैं, उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके ऊपर स्लाइड्स लगे होते हैं, देखे Yes. ना? यस सर। ठीक है, आपके ख्याल में वो क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। वो तो करता है, लेकिन है क्या चीज? वो भी यही पोटेंशियोमीटर है। Yes, I'm not 100% sure, but I'm most probably they are potentiometers. तो वो स्लाइडर क्या काम करता है? जब आप इंक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, नीचे वो जाती तो, है तो हाँ, डिक्रीज। वो तो खैर डीजे वाला काम है ना, लेकिन जरा मुझे पोटेंशियोमीटर के, हम एज्यूम करते हैं कि वो पोटेंशियोमीटर है, तो स्लाइडर को अगर हम ऊपर नीचे लेके जाते हैं तो बेसिकली आप इस चीज को ऊपर नीचे लेके जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि पॉइंट ए और सी के दरमियान जो है रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इमेजिन करें
कि ये टोटल लेंथ ये तो ओम में है ना, ये तो ओम है। इमेजिन करें कि ये फिजिकल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, टोटल लेंथ। और इमेजिन करें कि हमारा ये पॉइंटर जो है ये 5 सेंटीमीटर पे मौजूद है। ठीक है, तो इस वक्त ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस क्या होगा? देखिए चलें, पहले मुझे पहले करना चाहिए आर ए सी। पहले डिस्टेंस के इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ना सोचें, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया था। इस वक्त आर ए सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 0। सो जीरो बेसिकली क्या है, क्योंकि ये इन पॉइंट के दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 0 है, और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 10 ओम है। ठीक है, सो आर ए सी विल बी इक्वल टू 0 ओम। फिर मैं क्या करता हूं, सॉरी नहीं बल्कि चले 0 ओम है। फिर मैं क्या कहता हूं कि पॉइंटर को मिड में लेके आता हूं। ठीक है, अब जब पॉइंटर को मैं मिड में लेके आता हूं, ठीक है, तो आर ए सी विल बी इक्वल टू 5 ohm 5 ओम तो है, लेकिन किस चीज के बराबर है कि भाई दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय, यानी आर एक्स हम कह देते हैं, डिवाइड बाय आर टोटल। यस सर। ठीक है, तो वो हो Yes, जाएगा sir. 5 डिवाइड बाय 10 ओम इज इक्वल टू नहीं 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। चलिए मैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, चलिए जस्ट लेट्स गो मोर विद मी। चलिए 5 ओम। ठीक है, नेक्स्ट when I do it here then RAC will be equal to 10 ohm. ohm। ठीक है, ओम। अच्छा, ये सर्किट थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने ड्रा किया था। ये कौन सा सर्किट है? अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपके सामने ड्रा किया था, ये कौन सा सर्किट है? पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है ना? Yes, sir. ठीक है, Voltage. Yes, sir. अब अगर मैं इन दोनों रेजिस्टेंसेस को आपस में मिला दूं, ठीक है, और यहां पर मैं एक स्लाइडर लगा दूं और इस स्लाइडर को ऊपर नीचे लेके जाऊं, तो यहां पर वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज होगा ना? यस Yes, सर। sir. ठीक है, अगर ये स्लाइडर मैं उठा के यहां पर ले आऊं, तो अब कोई मुझे बता सकते कि V आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू V इनपुट क्या होगा? Same होगा sir. इक्वल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अगर मैं ये मिडल में ले आऊं तो हाफ होगा। हाफ Half होगा, होगा. और Yes. अगर मैं यहां पर ले आऊं तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, अब मुझे यह बात बताएं कि या तो मैं इस पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट के या तो मैं 2 सेपरेट रेजिस्टेंस यूज कर सकूंगा, लेकिन उस केस में क्या होगा कि मेरा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो होगा वो फिक्स्ड होगा, मतलब डिपेंडिंग ऑन द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, मेरे पास 2 वोल्टेज आ जाएंगे, V इन 2 वोल्टेजेस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं पोटेंशियोमीटर यूज करूं, वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करूं, पोटेंशियोमीटर इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो फिर उसका एडवांटेज क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स? Sir, कांस्टेंट। voltage के सर मीन साथ के वो फिर हम change उसे हो वेरी सकता कर है. सकते हैं, चेंज कर कर सकते सकते हैं हैं. दूसरे। हाँ, सर, उसका वो- हमें मतलब जितना रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है उसी के मुताबिक हम उसको ला सकते हैं सर. कि जितना मुझे वोल्टेज आउटपुट रिक्वायर्ड है उसको अचीव करने के लिए मैं इस सर्किट में सिर्फ इस पोटेंशियोमीटर को स्लाइड करूंगा, अप और डाउन स्लाइड करूंगा, तो मुझे मेरा रिक्वायर्ड वोल्टेज अचीव हो जाएगा। समझ आ रही है इस बात की? जी सर। Yes, sir. ठीक है, अगर आप ये वाला अप्रोच यूज करें कि आपके पास एक रेजिस्टेंस ये है फिक्स और ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो आपके पास जो 2 वोल्टेज आ जाएंगी, एक ये और एक ये।
इन वोल्टेजेस को V1 और V2 को चेंज करने के लिए आपको ये रेजिस्टेंस दोबारा रिप्लेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इसके बजाय इस तरह का पोटेंशियोमीटर की बेस पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना लें, तो V1 को चेंज करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज टू मूव दिस स्लाइडर अप एंड डाउन। समझ आ रही? यस जी सर। ठीक है। सो अगेन मेरा क्वेश्चन आपसे था कि व्हाट इज अ रेजिस्टेंस, व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर की सिंपल एक्सप्लेनेशन आप क्या कहेंगे कि व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर? Device used to achieve required voltage. नहीं, a potentiometer is a variable resistance. Yes, sir, variable resistance. ठीक है, a potentiometer is a variable resistance. अच्छा, ये गाड़ियों के अंदर जो रेडियो होते हैं उसके अंदर आप लोगों ने नॉब देखा होता है, नॉब जो गोल गोल घूमता है। Yes, sir. Now it can be a variable, इस तरह के जो devices होते हैं, it can be a variable capacitance or it can be a variable resistance, sometimes even variable inductance. लेकिन हमारे पास पोटेंशियोमीटर दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं लीनियर पोटेंशियोमीटर, दूसरे जो है हमारे पास रोटेशनल या सर्कुलर पोटेंशियोमीटर्स होते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है लीनियर पोटेंशियोमीटर की। अगर हम सर्कुलर पोटेंशियोमीटर की एग्जांपल लें तो वो कुछ यूं होते हैं। This is point A, this is point B, and this is point C. और point C वो रोटेट करता है। इस वक्त पॉइंट फॉर एग्जांपल ये 360 ओम है, ये टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये जो मैंने सर्कुलर रेजिस्टेंस रहा है। इफ दिस इज 360, तो इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी के दरमियान इस वक्त क्या रेजिस्टेंस है? कोई मुझे बता सकते हैं? 360, sir. नहीं 360 नहीं नहीं, देख लेना ये 320 or 30 नहीं something. 0 है सर। नहीं नहीं, जीरो है। और आर ए सी के दरमियान क्या रेजिस्टेंस है? क्योंकि देखिए ए और सी के दरमियान पूरा रेजिस्टेंस का पाथ कवर करने के बाद वो सी को पहुंचेगा, तो इट विल हैव टू फ्लो थ्रू ऑल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 360। 360, sir. अच्छा, अगर तो मैं ये यहां पर रोटेट करके, यहां से रोटेट करके यहां पे ले आऊं, ठीक है, इफ आई पुट इट हियर, तो अब आर बी और सी के दरमियान रेजिस्टेंस क्या होगा? कोई बता सकता है? 180 180. 180 ओम। हाँ और 180 ओम है, और रेजिस्टेंस ए सी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? 180, sir. वो भी 180 होगा। इसका मतलब यह है कि दिस इज आल्सो अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसे भी हम क्या कहेंगे? पोटेंशियोमीटर। लेकिन ये वाला वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है, दिस इज अ लीनियर पोटेंशियोमीटर, दिस वन इज ए रोटेशनल या सर्कुलर पोटेंशियोमीटर। समझ आ रही है इस बात की? यस सर। ठीक है। अब आपका एक पूरा एक टॉपिक है चैप्टर 12 में पोटेंशियोमीटर्स पे, ठीक है, लेकिन ये अभी मैंने आपको पहले से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दे दिए। सो पोटेंशियोमीटर्स कैन बी यूज्ड इन ए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट टू अचीव वोल्टेज डिवीजन, ठीक है, ऑफ द सोर्स वोल्टेज। सर जी सर, ये सर्कुलर पोटेंशियोमीटर में हम रेजिस्टर की वैल्यू डिग्रीज में लेंगे फिर? नहीं, डिग्री इस पे नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है ना, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो, ठीक है। अच्छा। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि ये 360 डिग्री हो सकता है ये 1000 ओम टोटल ओके सर। रेजिस्टेंस, यानी पॉइंट ए और बी के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस जो है 1000 ओम है। लेकिन अगर सी बिल्कुल यहां पर है तो 1000 का हाफ होगा ना, बी और सी के दरमियान जो है 1000 का हाफ यानी 500 ओम होगा, और ए और सी के दरमियान भी 500 ओम होगा। ऑन द अदर हैंड अगर ये यहां पर होगा तो बी और सी के दरमियान 0 ओम होगा, और ए और सी के दरमियान जो है 1000 ओम होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ओके सर। ठीक है, बट यू कैन यूज दिस 360
ओहम पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर, एंगुलर मेजरमेंट सेंसर के तौर पे यूज कर सकते हैं। समझ आ रही है इस बात की? यस सर। इमेजिन करें कि पोटेंशियोमीटर को आपने कनेक्ट कर दिया एक सैटेलाइट डिश के साथ, ठीक है? जी अब जब जी। ये सैटेलाइट डिश रोटेट होती है तो ये वाला नॉब भी उसी तरह से रोटेट होता है। यस सर यस सर। तो अब सैटेलाइट डिश की एंगल ऑफ रोटेशन आप मेजर कर सकते हैं बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्कुलर पोटेंशियोमीटर बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। यस सर। समझ आ ओके। रही है इस बात की? यस सर ओके। ठीक है, चलें हम आगे जल्दी से जाते हैं। सो रेजिस्टेंस मेजरमेंट, हमने वोल्टेज डिवाइडर सर्किट देखें। आज के लेक्चर में ये जो टाइम मैंने बहुत लिए, सिर्फ 2 स्लाइड्स थे, उस पर मैंने मोर देन 1 आवर, तकरीबन 1.5 घंटा लगा लिए। उसकी रीजन ये है क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये यूज होंगे थ्रू आउट द बुक, ठीक है? तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज हीट डेसिपेशन थ्रू अ रेजिस्टेंस, ठीक है? What is wattage of a resistance? What is potential divider circuit? What is a potentiometer? ठीक है, ये सारी कॉन्सेप्ट जो है हम बार बार यूज करेंगे। क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है। सो पिछले लेक्चर में हमने वोल्टेज और करंट मेजरमेंट डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम थोड़ा आगे जाते हैं, विच इज रेजिस्टेंस मेजरमेंट। रेजिस्टेंस मेजरमेंट का एक इशू है कि रेजिस्टेंस कैन हैव अ वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज। So it can have a range from 10 raised to the power minus 5, ठीक है, up to 10 raised to the power 15 ohm or even more, ठीक है? जो insulators होते हैं, they have even higher, मतलब they have very high resistance, ठीक है, depending on how good an insulator that is. तो for that reason हम जब resistance measure करते हैं, so we may use multiple measurement techniques for resistance, ठीक है? अगर आपने इस रेंज में रेजिस्टेंस मेजर करनी है, किलो ओम, ओम, हंड्रेड्स ऑफ ओम, किलो ओम, मेगा ओम, गीगा ओम या मेगा ओम टिपिकली, सो फॉर दोस काइंड ऑफ रेजिस्टेंसेस वी यूज ओम मीटर, ठीक है? जो आपने कोई एफएससी में पढ़ा हुआ है, ठीक है? विच इज बेसिकली ए आइटरेशन ऑफ ए Dierson wall moment mechanism that we studied in the previous lecture. लेकिन अगर आपने बहुत small resistances measure करने हैं, milli ohms, micro ohms, ठीक है? For those kinds of resistance measurement or resistance change measurement, we typically use Wheatstone bridge, ठीक है? अब थोड़ा सा मैं आपको ओम मीटर की ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद डायरेक्टली हम व्हीटस्टोन ब्रिज पे जाएंगे। और व्हीटस्टोन ब्रिज हम क्यों पढ़ रहे हैं? विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंस्ट्रूमेंटेशन, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन में जो हमारे पास बहुत से ऐसे सेंसर हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत माइन्यूट होता है या उनमें चेंज इन रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। उस तरह के स्मॉल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओम मीटर at time is not a suitable instrument to measure that small change in resistance. For those very small changes in resistance, we typically use Wheatstone bridge. ठीक है? Before we go to the Wheatstone bridge, हम थोड़ा सा ohm meter discuss कर लेते हैं. What is ohm meter? Ohm meter again क्या है? Dierson wall moment mechanism आप लोगों ने आपके लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था, ठीक है? That was this one. This one. ये मैकेनिज्म हमने डिटेल में स्टडी किया था, ठीक है? जिसकी मदद से आप एक गैल्वानोमीटर बना सकते हैं, ठीक है? सो अगर मैं आपको एक अननोन रेजिस्टेंस दे दूं और आपसे कहूं कि दिस आर अननोन की वैल्यू मालूम करें, सो ऑल यू हैव टू डू इज यूजिंग ओम लॉ, आपने एक नोन वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करनी है, वी नोन, ठीक है? एक नॉन वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करनी है और एक आपने दरमियान में यहां पर एक गैल्वानोमीटर लगा देना है, ठीक है? सो दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल, दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल, देयर विल बी करंट फ्लो। लेट्स सपोज हम एक नॉन वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करते हैं 5 वोल्ट और वो इस अननोन रेजिस्टेंस में से फ्लो करके यहां पर गैल्वानोमीटर मुझे कहता है कि 1 एम्पेयर करंट फ्लो हुआ है इस सर्किट में, इस रेजिस्टेंस में से टोटल 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। So
अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? वी आर अननोन विल बी वी इज इक्वल टू आई आर के फार्मूले आप यूज करेंगे. सो वी नोन is equal to I galvanometer into R unknown. So R unknown will be equal to V. V नॉट डिवाइड बाय हाँ बिल्कुल सही. V known I divided by galvanometer. हाँ I galvanometer. ठीक है. तो इस केस में क्या वैल्यू आएगी? 5 डिवाइड बाय 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 5 ओम. मालूम कर ले. दैट्स इट. ये आपका ओम मीटर है. ठीक है. अब आप कहेंगे कि सर ये चीजें क्यों हैं? ये चीजें क्यों हैं? ठीक है. नाउ ये जो है दिस इज ए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट. ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है. ठीक है. ये वोल्टेज देखिए इसमें पोटेंशियोमीटर आपको नजर आ रहा है. ठीक है. दिस इज बेसिकली Yes, sir. वोल्टेज डिवाइडर सर्किट. आप पिछले स्लाइड के साथ कंपेयर करें, यू विल फिगर इट आउट. दिस इज वोल्टेज डिवाइडर सर्किट. ठीक है. ये इसलिए एज्यूम करें कि ये रेजिस्टेंस बहुत छोटा था. असल चीज इसके जलने और इसके जलने का मसला आता है. एज्यूम करें कि ये रेजिस्टेंस बहुत छोटा था. ये 5 ओम नहीं था, ये 0.000001 ओम था. हमारी assumption है. अगर आप V इज इक्वल टू आई आर का फार्मूला इस्तेमाल करें, V हमारे पास 5 वोल्ट है और R जो है हमारे पास 0.000050 और 650 और 1 है. तो R की वैल्यू I की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट विल बी द I वैल्यू? ये क्या मसला हो गया? एक मिनट. अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे बता दें जब आपको. कैन यू सी द प्रेजेंटेशन नाउ? Yes, sir. ठीक है. अब देखें, अगर मैं यहां पे I की वैल्यू मालूम करूं, सो I विल बी इक्वल टू 5 वोल्ट डिवाइड बाय 0.000001. इससे क्या बनेगा? करंट की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है स्टूडेंट्स. Yes, sir. दिस इज 5 मेगा एम्पेयर. आपको पता है ये जो एसी कितने एम्पेयर बिजली खाता है? टिपिकली जो आपका 1.5 टन का इन्वर्टर एसी होता है वो फुल लोड पे कितनी बिजली खा रहा होता है? आपको कुछ अंदाजा है? No, sir. उसका तो नहीं पता. दैट इज तकरीबन 9 एम्पेयर होता है. अब मुझे आप ये बताएं कि एसी की बिजली के मुकाबले में 1 मेगा एम्पेयर इज इट अ स्मॉल क्वांटिटी और ह्यूज क्वांटिटी? Large, sir. बहुत ज्यादा. तो टिपिकली आपके पास जो 5 वोल्ट सोर्स होगा वो इतनी करंट प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि एक बैटरी में कितने एम्पेयर करंट कैपेसिटी होगी ना. लेकिन होता क्या है कि अगर आप हाई वोल्टेज डायरेक्टली प्रोवाइड कर ले एक अननोन रेजिस्टेंस का, जिसको आपको पता नहीं है कि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, तो अगर आपने फुल वोल्टेज यानी 5 वोल्ट प्रोवाइड कर दी एक अननोन रेजिस्टेंस की, जिसकी फॉर एग्जांपल बाय चांस वो बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस है, तो उसमें से इतना ज्यादा करंट फ्लो होगा कि वो तो या तो रेजिस्टेंस को जला देगा या इस गैल्वानोमीटर को जला देगा. समझ आ रही है इस बात की? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. लेकिन अब आप कहेंगे कि सर हम 5 वोल्ट के बजाय बहुत स्मॉल वोल्टेज यूज कर लेंगे. लेट्स सपोज 0.1 वोल्ट यूज करते हैं रादर देन 5 वोल्ट, ताकि ये मसला ना रहे. उस केस में मसला ये है कि अगर आपका ये अननोन रेजिस्टेंस लेट्स सपोज 1 मेगा ओहम हो,
हो सकता है 1 मेगा ओम हो सकता है। तो अगर आप उसमें से 0.1 वोल्ट वोल्टेज पास करेंगे तो उसमें से जो करंट होगा वो इतना स्मॉल होगा कि वो ये गैल्वानोमीटर डिटेक्ट ही नहीं कर सकेगा। समझा रही है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। तो इसलिए जो वोल्ट मीटर्स होते हैं वो डिजाइन, स्पेशली जो डिजिटल वोल्ट मीटर्स होते हैं वो डिजाइन ऐसे होते हैं कि उसके अंदर एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स होती है। वो सबसे पहले स्मॉल वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर गैल्वानोमीटर या एम मीटर कोई करंट डिटेक्ट कर ले, सुटेबल अमाउंट ऑफ करंट, तो वो उस पे कैलकुलेशन करके आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देते हैं। लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी ज्यादा हो कि स्मॉल वोल्टेज पे एमीटर या गैल्वानोमीटर कोई करंट ही नहीं डिटेक्ट करता, ठीक है, तो वो थोड़ी वोल्टेज बढ़ा देते हैं। उस हद तक बढ़ाते हैं कि एमीटर जो है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट डिटेक्ट करे पासिंग थ्रू द सर्किट इंक्लूडिंग द अननोन रेजिस्टेंस। एट दैट पॉइंट इट कैलकुलेट्स द अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू। समझा रही स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, Yes, sir. सो ये बेसिकली हमारे पास सेफ्टी फीचर भी है और फंक्शनैलिटी, क्योंकि हम एक फिक्स वोल्टेज सोर्स से वास्ट रेंज ऑफ रेजिस्टेंसेस मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमने ये सर्किट साथ में डिफाइन किया हुआ है। इसी सर्किट की ये दो और आइटरेशन है। ठीक है, इनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। इनका बेसिकली इनका मकसद क्या है, एक तो इस केस में एक एडिशनल आ गया जीरो कंट्रोल, ठीक है, या आप बुक में थोड़ा पढ़ लें, और दूसरा जो है इस साइड पे रेंज सिलेक्शन है। ठीक है, कि मल्टीपल रेंज सिलेक्शंस हम कर रहे हैं, और दैट्स इट, जीरो कंट्रोल और रेंज सिलेक्शंस है। अब हम आते हैं वी स्टोन ब्रिज की तरफ। ठीक है, और तकरीबन 15-20 मिनट है, इसमें मैं बेसिक आपको कुछ कैलकुलेशंस, वी विल डू सम बेसिक कैलकुलेशन, उसके बाद हमारा मिड टर्म का कोर्स खत्म हो जाएगा। So what is a bridge circuit? A bridge circuit can be devised for measuring capacitance, inductance, and most often resistance. A purely resistance bridge called a V-stone bridge provides mean for accurately measuring an unknown resistance. Figure 6.13, R1 is the to be measured resistance. A DC voltage is applied. Okay? Now this is a bridge circuit. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए ब्रिज सर्किट। कुछ ब्रिज सर्किट में क्या होंगे कि अगर इस ब्रिज सर्किट में देखें तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स हैं और चारों के चारों एक टाइप के हैं और चारों के चारों जो है रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, इस तरह के ब्रिज सर्किट को हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, दिस इज अ व्हीट स्टोन ब्रिज कि जो कि प्योर रेजिस्टिव ब्रिज हो। ठीक है, कुछ ब्रिज सर्किट होंगे जिसमें रेजिस्टेंस की बजाय यहां पे कैपेसिटर्स होंगे। इस तरह के सर्किट को भी हम ब्रिज सर्किट कहेंगे, लेकिन इससे हम वी स्टोन ब्रिज सर्किट नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसे कहेंगे कैपेसिटिव ब्रिज। ठीक है, फिर हमारे पास हो सकता है एक और ब्रिज हो जिसके अंदर इंडक्टर्स हो। Inductors. Now this is also a bridge circuit. It's not a Wheatstone bridge circuit. It's an inductive bridge circuit. Clear है यहाँ तक students? यस सर। अच्छा, Yes, sir. अब इसी सर्किट को मैं, और ये अभी जो मैं आपके सामने प्लॉट करूंगा, ठीक है, दिस इज की टू अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग ब्रिज सर्किट। ठीक है, इस फॉर्म में इस ब्रिज सर्किट को एनालाइज करना स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो कि बहुत फेमिलियर ना हो ब्रिज सर्किट के साथ, उनको ये सर्किट एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है। बट आई एम गोना ड्रॉ दिस सेम सर्किट इन अ डिफरेंट फॉर्म। And both of these circuits are equivalent circuits. And I'll prove it to you.
ठीक है, ये जो लॉन्गर बार होता है दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल, जो स्मॉलर बार है दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल। तो लॉन्गर बार से हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर तो ई आई हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल किस चीज के साथ कनेक्ट है? पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड है। इसको मैं ए का नाम दे देता हूं। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट के दरमियान कोई इलेक्ट्रिक एलिमेंट नहीं है। तो ए पोटेंशियल और ए पोटेंशियल और ये पोटेंशियल और these two nodes are at the same potential। किसी को एतराज है इस बात पे जो मैंने दोनों को No. ए नाम दे नो सर। सेम पोटेंशियल है ना, क्योंकि दरमियान में ना कोई रेजिस्टेंस है, ना कैपेसिटर है, ना इंडक्टर है। फिर ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस R1 है, तो इसे मैं R1 कह देता हूं और इसे मैं बी वैल्यू कह देता हूं। फिर बी और डी के दरमियान रेजिस्टेंस R2 है, R2 और D है। और अगर आप D देखें, D का पोटेंशियल क्या है? D का पोटेंशियल दोनों सर्किट में क्या है? सर नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, इसी तरह दोबारा A से जाए, A से A और C के दरमियान क्या चीज है? R3 R3। और C और D के दरमियान क्या चीज है? R4। और ये D और इन दोनों को मैं D कह सकता हूं। यस सर, सेम पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा पावर सोर्स कौन से दो पॉइंट्स को कनेक्टेड है? ई आई कौन से दो पॉइंट्स को नाम बताएं? ए और डी। और यहां पर पावर सोर्स को देखें, किन दो पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टेड है? यहाँ पर भी ए और डी को कनेक्टेड है। यहाँ पर भी पॉजिटिव पोटेंशियल है वो ए को कनेक्टेड है, जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो डी को कनेक्टेड डी है। को। ठीक है, अच्छा फिर मुझे यह बात बताएं कि ये जो हमारा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है दिस इज गैल्वानोमीटर, जो हमारा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो किन दो पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टेड है? बी सी और एंड डी। बी। सी एंड बी। बी एंड बी। बी और सी एंड बी डजंट मैटर। ठीक है, दोनों ठीक है। ठीक है, तो क्या can I now say after all this, can I say that circuit A and B are the same? यस सर, दे आर यस सेम। सर। ठीक है, अब इस सर्किट को जरा आप देखें, जरा थोड़ा सा जी को थोड़ी देर के लिए हम निकाल लेते हैं। पहले सर्किट को आप देखें, इसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही कि ये रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में, पैरेलल में। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप इस सर्किट को देख लें तो ये सर्किट तो बहुत सिंपल है। R1 और R2 सीरीज में है, R3 और R4 सीरीज में है, फिर ये दोनों आपस में ऐड अप हो जाएंगे और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। उस सर्किट को एनालाइज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं यहां पर RG की वैल्यू डाल देता हूं, गैल्वानोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, अब ये सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, अब आप इस सर्किट को सिंपल सीरीज पैरेलल सर्किट की बेस की तरह एनालाइज नहीं कर सकते। आपने क्या यूज करना है, किसी को पता है इस तरह के सर्किट के एनालिसिस के लिए? एनालिसिस सर। मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस। बिल्कुल, और कौन से लॉ यूज किए जाते हैं? अमॉन्ग अदर केवीएल, करंट किरचॉफ वोल्टेज। हेलो स्टूडेंट्स। जी सर। सर आपकी आवाज कट गई थी दरमियान में। अच्छा,
अब दोबारा मैं आपसे पूछा, यहां तक क्लियर है? यस जी सर। सर। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते। अब थोड़ा सा मुझे बार बार ये पिछली स्लाइड पे जाना पड़ेगा, ठीक है? ये 6.9 I1 और I1 R1, और ये बेसिकली आई आर किस चीज के बराबर है? वोल्टेज ड्रॉप के बराबर है ना? यस सर। यस सर। वोल्टेज ड्रॉप। हाँ, तो ये कह रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस 1 माइनस वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्यों कह रहा है, जरा हम देख लेते हैं। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस 1 एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस 3 इज इक्वल टू 0। जरा ये पढ़ सर लेते हैं। दोनों सेम पोटेंशियल से सर जा रहे हैं, ए पोटेंशियल से। हाँ, ये इसको समझने के लिए इंटरेस्टिंग चीज है, आप ये वाला, कोई एक स्टूडेंट मुझे ये वाला 3 लाइनें पढ़ के सुना दे। एनी स्टूडेंट? सर पैरेलल में जो है वो वोल्टेज सेम होता है। हाँ नहीं, चलें, ये 3 जुमले कोई पढ़ सकते हैं? कोई पढ़ के दे दे मुझे ये 3 जुमले, स्टूडेंट्स। यस सर। जी थोड़ा पढ़ लें, ये 3 जुमले Under पढ़ the लें। condition that the current flow through the galvanometer Ig is 0, the bridge is in a balanced condition. बिल्कुल सही। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये पोटेंशियल, अभी थोड़ी देर पहले हमने पोटेंशियल डिस्कस किए थे ना। फॉर एग्जाम्पल ये 12p पोटेंशियल है और ये 0p पोटेंशियल है, ठीक है? Yes sir। तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा? 12p होगा। 12p। यहां पर क्या होगा? 12p होगा। यहां पर क्या होगा? 12p। 12p होगा। लेट्स सपोज ये दोनों रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू है, R1 इज इक्वल टू R3, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? सेम ही होगा ना। एज्यूम करते हैं Yes कि sir। हम सेम करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंसेस भी सेम, हम एज्यूम कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल C पे जो है 10p आ जाता है और B पे भी 10p आ जाता है, ठीक है? तो Yes sir। बी और सी सेम पोटेंशियल पे है, ठीक है? अगर बी और सी सेम पोटेंशियल पे हैं, would there be any current flow from point B to C or from C to B? कोई करंट फ्लो होगा अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे? नो सर। No sir। नहीं होगा ना। तो अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा गिलवानोमीटर में से, तो गिलवानोमीटर में तो कोई एनर्जी जाए नहीं, तो क्या उसकी नीडल हिलेगी? नो No सर। sir। रिफ्लेक्ट होगी? नहीं होगी ना। नीडल तो 0 पॉइंट पे ही खड़ी होगी, ठीक है? तो क्योंकि गिलवानोमीटर में से कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, सो देयरफॉर गिलवानोमीटर कैन नॉट डिटेक्ट एनी करंट फ्लो, सो उसकी नीडल जो है 0 पॉइंट पे ही खड़ी होगी। इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड ब्रिज, ठीक है? हम कहते हैं कि इस वक्त ये ब्रिज बैलेंस्ड है। बैलेंस ब्रिज का मतलब ये है कि इन चारों रेजिस्टर्स की वैल्यू ऐसी वैल्यू है कि बी और सी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए जो है देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द गिलवानोमीटर, और चूंकि गिलवानोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट नहीं कर रही, इवन देखें यहां पर करंट फ्लो मौजूद है, इस पूरे सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, ठीक है? लेकिन बी और सी का चूंकि पोटेंशियल सेम है, इसलिए इन दोनों के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं हो रहा। इस बात की समझ आ रही है स्टूडेंट्स? Yes sir। अगर किसी को कंफर्म नहीं है, शो नहीं है, तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ लें, गिव मी एन आइडिया कि कहां पे आप कंफ्यूज है। स्टूडेंट्स क्लियर है sir। सर, क्लियर है। अब 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 हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान
अगर तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि देयर इज नो करंट आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, सो दिस कैन, वी आर सेइंग दैट देयर इज नो करंट एट ऑल, सो दिस मींस कि पॉइंट बी और पॉइंट सी का पोटेंशियल सेम है। इफ अगर पॉइंट बी और पॉइंट सी का पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 should be equal to potential drop across R3. समझ आ रही है? Yes, sir. और potential drop across R1 minus potential drop across R3 should be equal to 0. 0. और I1 कह दे, R1. I1 R1 minus I3 R3 is equal to 0. दो आईज क्यों है? वाई आर देयर टू आईज? ठीक है, वो समझ ले। देखें यहां पर एक आई आ रहा है, दिस इज आई, सिंपली आई। ये एक नोड है, दिस इज बेसिकली लाइक दिस, यहां पे आई आ रहा है, ये एक नोड है, ए नोड है। यहां पे दो करंट्स में डिवाइड हो जाता है, I1 और एंड I3। आप इसको बेशक यूं कर ले, I1 इसे हम नाम दे दिया, और इसे हम I2 भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये I3 रेजिस्टेंस पे से गुजर सॉरी R3 रेजिस्टेंस पे से गुजर रहा है, तो इसलिए हम इसे I3 दे देते हैं। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने I2 क्यों नहीं लिखा। ठीक है, वो सिर्फ ये क्योंकि ऊपर इस ये यहां से जो करंट पास हो रहा है, ये वाला करंट सबसे पहले R3 में से गुजर रहा है, तो इसलिए हम इसे R3 कह देते हैं। एज्यूम करें कि आगे ये करंट ना तो I1 करंट इस डायरेक्शन को आ रहा है, ना I3 करंट इस डायरेक्शन को आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो करंट I1 करंट R1 में से गुजरा है, वही करंट R2 में से भी गुजरेगा। ठीक है, जो करंट I3 में से गुजरा है, जो करंट R3 में से गुजरा है, वही करंट R4 में भी गुजर रहा है। समझ आ रही है इस बात की? Yes, sir. यस ठीक है, सर। सो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन क्या है? बैलेंस ब्रिज की कंडीशन ये है कि अगर तो वोल्टेज ड्रॉप, अगर तो if we have a same voltage drop, this voltage drop is equal to this voltage drop and this voltage drop is equal to this voltage drop, अगर ये सेम है तो आपकी हमारी ब्रिज कंडीशन बैलेंस रहेगी। ठीक है, हम कहते हैं कि इफ voltage drop across R1 is equal to voltage drop across R3 and voltage drop, second condition हमारी क्या है? voltage drop across R2 is equal to voltage drop across R4 is equal to voltage drop across R2। जरा पिछली उस पे आ जाए स्लाइड पे, देखें R1 voltage drop across R1 should be equal to voltage drop across R3. Voltage drop across R2 should be equal to voltage drop across R4. This should be R2 and this should be R4. Based on this, if you combine these two conditions need to be satisfied. If you combine these two conditions, ठीक है, तो हमारे पास हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि I1 R1 minus I3 R3 is equal to 0 and I2 R2 minus I4 R4 is equal to 0, since we know that I1 is equal to I2 and I3 is equal to I4 when the bridge is balanced. ठीक है, when the bridge is balanced, ये important point है, क्योंकि अगर bridge balance नहीं है फिर ये condition apply नहीं होती कि this I1 is equal to I2 and I3 is equal to I4. If this is the case, then in this scenario we can write it as I1 R1 minus I3, मतलब इसको we can rearrange it और फिर हमारे पास इन दो इक्वेशन से हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली हम कहते क्या है, we say that
we say divide equation 2 by 1, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी I2 into I4 divided by I1 into I3. Since I3 is equal to I4, ये cancel out हो जाएंगे, and I2 is equal to I1, वो cancel out हो जाएंगे, और फिर हमारे पास सिर्फ फाइनल फार्मूला रह जाएगा R2 divided by R1 is equal to R4 divided by R3. यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, अब जरा थोड़ी सी हम जरा रिव्यू करते हैं, ठीक है, जो अब तक हमने ब्रिज सर्किट के बारे में पढ़ा। सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाट इज अ ब्रिज सर्किट? ठीक है, तो उसका सबसे आसान जवाब ये है कि सर लेट मी ड्रा इट फॉर यू। ठीक है, सो अगर आप मेरे लिए ये सर्किट ड्रा करते हैं या ये सर्किट ड्रा करते हैं तो आप कहेंगे सर दिस इज अ ब्रिज सर्किट। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, तो उसका जवाब आप ये कहेंगे कि सर ब्रिज सर्किट कैपेसिटर्स का भी हो सकता है, रेजिस्टेंसेस का भी हो सकता है, इंडक्टर्स का भी हो सकता है, और इन मल्टीपल एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से भी ब्रिज सर्किट बन सकता है। लेकिन वो वाला ब्रिज सर्किट कि जिसमें चारों के चारों एलिमेंट रेजिस्टेंसेस हो, यानी उसमें कोई कैपेसिटर ना हो, उसमें कोई इंडक्टर ना हो, सिर्फ रेजिस्टेंसेस हो, तो उस तरह के ब्रिज सर्किट को हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है? यहां तक क्लियर है ये बात? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, नेक्स्ट यस सर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ठीक है आपने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, लेकिन मुझे ये बताएं ये व्हीटस्टोन ब्रिज यूज किस चीज के लिए होता है? ठीक है, अब इसका जवाब अभी तक मैंने आपको नहीं दिया, मैं अभी आपको सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, उसका जवाब ये आप ये देंगे और मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कि इट इज यूज फॉर मेजरिंग ए unknown resistance or a change in resistance. Basically it's a resistance measurement instrument. जैसे ओहम मीटर नहीं है, इसी तरह व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस मेजर करता है, लेकिन ओहम मीटर टिपिकली हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं, जैसे टेंस ऑफ ओम्स, हंड्रेड्स ऑफ ओम, किलो ओम्स, मेगा ओम्स, गीगा ओम्स के लिए। जबकि आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होते हैं, जैसे मिली ओम, मे बी इवन माइक्रो ओम्स के लिए। क्लियर है यहां तक स्टूडेंट्स? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जरा हम थोड़ी व्हीटस्टोन ब्रिज की वर्किंग में जाते हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज डिवाइस को यूज करने के लिए जरूरी है कि आप उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करें, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, समझ आ रही है? Yes, sir. और डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस, आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, आपको ये पता था कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट प्रोवाइड किए और यहाँ पर आपके पास गिलवानोमीटर की वैल्यू आ जाती है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अननोन रेजिस्टेंस कैसे होता है कि जैसे हमारे पास इन 4 रेजिस्टेंस में से ये 3 नोन होंगे और हो सकता है ये वाला अननोन हो। ठीक है, तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने ओम मीटर का सर्किट बना के दिया था कि आप वोल्टेज सोर्स और गिलवानोमीटर की मदद से अननोन रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इसी तरह हम इस सर्किट में भी वोल्टेज सोर्स और गिलवानोमीटर की मदद से अननोन रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। उसका अपना फार्मूला है। क्लियर है यहां तक स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। अब एक क्वेश्चन आता है, ब्रिज सर्किट को यूज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है बैलेंस्ड ब्रिज। बैलेंस्ड ब्रिज, अब बैलेंस्ड ब्रिज का मतलब क्या होता है, कोई स्टूडेंट बताएंगे? सर जब गैल्वानीमीटर में करंट जीरो शो हो तो तब हमें बैलेंस ब्रिज कह सकते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ी सी एक आप और एडिशन भी करेंगे। देखें, अगर यहां पर इनपुट वोल्टेज आप ना दें तो चाहे ब्रिज बैलेंस हो या ना हो, गिलवानोमीटर कोई करंट शो नहीं करेगा। ठीक है, तो Yes, sir. हम कहते हैं कि व्हेन द ब्रिज इज एनर्जाइज्ड, एनर्जाइज का मतलब ये है कि आपने यहां पर इसको इनपुट एनर्जी प्रोवाइड की हुई है। व्हेन द ब्रिज इज एनर्जाइज्ड and galvanometer needle doesn't deflect, galvanometer doesn't deflect, it doesn't show any current passing through it, this type of condition, this condition of the bridge is called balanced bridge condition. Okay, ठीक है? sir.
और Yes, sir. बैलेंस ब्रिज कंडीशन आपके पास तब आती है जब आपके पास ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। जब आपने जब जब रेजिस्टेंस की कॉन्फ़िगरेशन ये हो, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने ड्रा की थी, यानी रेजिस्टेंसेस की कॉन्फ़िगरेशन R3 यहां पे हो, R4 यहां पे हो, ठीक है, या रेजिस्टेंसेस की कॉन्फ़िगरेशन जब सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन ये हो या इस फॉर्म में ये हो, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल ए के साथ कनेक्ट हो, ए जो है R1 और R3 के साथ कनेक्टेड हो, नेगेटिव पोटेंशियल डी के साथ कनेक्ट हो और डी जो है R2 और R4 के साथ कनेक्टेड हो, और गिलवानोमीटर जो है वो सी और डी के साथ कनेक्टेड हो। इन दिस सिनारियो if this condition is satisfied, R2 is equal to R2 divided by R1 is equal to R4 divided by R3, then in this case, अगर ये रेजिस्टेंसेस बराबर, इसका मतलब क्या है, मैं आपके सामने चंद एक छोटे एग्जांपल्स आपके सामने पेश करता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इस सर्किट को मैं 12 वोल्ट प्रोवाइड करता हूं, 12 वोल्ट, ठीक है, और R1 की वैल्यू 1 ओम है, R2 की वैल्यू 1 ओम है, R3 की वैल्यू 1 ओम है, R4 की वैल्यू 1 ओम है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि गिलवानोमीटर में कोई करंट फ्लो होगा या नहीं, विल इट बी अ बैलेंस ब्रिज और नॉट? तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सर बैलेंस ब्रिज होगा, लेकिन आप कंफर्म कैसे करेंगे? आप R2 यहाँ by पर जब हमारे साथ R2 by R1 R3 और R4 by R3 करेंगे तो 1 1 होगा, तो इक्वल आ रहा है, तो इस वजह से बैलेंस हो गई। अगर ठीक है, ये वैल्यू सेम नहीं आएगी तो फिर ये अनबैलेंस होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर मैं ये यूं कर लूं, ये 2 है और ये 4 है, और ये जो है मैं 4 और ये 8 कर लूं, अब मुझे बताएं ये बैलेंस है कि नहीं? नो सर। I1 और I2 सर सेम नहीं है। जरा बता दें। 2 इज इक्वल टू 2 है सही। R2 की वैल्यू क्या है? 2 है। R3 की वैल्यू क्या है? R2 की वैल्यू 4 है। R1 की वैल्यू क्या है? 2 है, 2 है। तो 2 आ जाएगा। और R4 की वैल्यू क्या है? 8 सर बैलेंस और R3 की वैल्यू क्या है? 4 तो क्या वैल्यू आ रही है? 2 इज इक्वल टू 2। तो ये ब्रिज क्या है? सेम नहीं है सर, बैलेंस्ड है सर। बैलेंस्ड है। अब मैं आपको आसान, अभी आप कंफ्यूज हो रहे थे ना कि सर ये हमें कैसे पता चले, हम हर डायग्राम याद करेंगे, ठीक है। अब जरा मैं आपके लिए आसान बना देता हूं। ये है ना, ये हमारे पास R1 है और ये हमारे पास R3 है, और फिर ये हमारे पास R1, सॉरी, ये R1 है और ये R2 R2, और ये जो है R3 है और ये जो है R4 है, ठीक है। सिंपल बात ये, इफ द रेशियो ऑफ this branch equal to ratio of this branch, then your bridge is balanced. देखें इस केस में, देखें ना, अभी जो मैंने आपके सामने वैल्यूज डाली थी, R2 की वैल्यू क्या है? 4 है। R1 की वैल्यू क्या है? 2 है। R3 की वैल्यू क्या है? 4 और R4 की वैल्यू क्या है? 8। ये इस यहां पे रेशियो क्या है? 1/2 है ना। R1 डिवाइड बाय R2 जो है 1/2 है। यस सर। और R3 डिवाइड बाय R4 जो है वो भी 1/2 है। 1/2। अगर दोनों ब्रांचेस की रेशियो सेम है, चाहे आप R1 डिवाइड बाय R2 लेते हैं या R2 डिवाइड बाय R1 लेते हैं, ठीक है, यानी या तो आप लेंगे R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाय R4, या R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू R4 डिवाइड बाय R3 लेते हैं, जिस तरह से भी आप रेशियो लेते हैं। लेकिन अगर दोनों ब्रांचेस, एक ब्रांच की रेजिस्टेंस की रेशियो
दूसरे ब्रांच की रेजिस्टेंस की रेशियो के बराबर है तो ब्रिज बैलेंस्ड है। ओके सर। क्लियर है? यस इसका सर। मतलब क्या होगा कि फिर अगर ये कंडीशन है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा। दिस बी एंड सी will be at the same potential. अगर same potential पे होंगे then there will be no current flow either from B to C or C to B. Clear? And since there will be no current flow, that means that the bridge is balanced. ओके सर। ठीक है? ठीक है? यस सर। अब हम क्या करते हैं, हम बस ये आखिरी, जी टाइम पूरा हो गया मुझे पता है, ये एक वो करते हैं ताकि आपको सिर्फ इतना पता चल जाए कि ये यूज कैसे होता है। फिर बस हम एक R1 हटा देते हैं और इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक अननोन रेजिस्टेंस, R अननोन। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये भी 1 है, ये 2 है, और यहां पर मेरे पास पोटेंशियोमीटर है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट्स? यस सर। अब मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले जैसे ही मैं इस यहाँ पे 12 वोल्ट अप्लाई करता हूं तो गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो एक साइड को डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, अनबैलेंस्ड है ना। अनबैलेंस्ड। ठीक है, यस वो सर। जीरो पे नहीं है, वो एक साइड को डिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद मैं क्या करता हूं कि ये एक रेजिस्टेंस को जो है ना, इसको मैं वेरी करना शुरू कर देता हूं। एक साइड पे वेरी करता हूं तो नीडल और भी इस साइड पे चली जाती। ठीक है, तो मैं अपोजिट साइड पे वेरी करना शुरू कर देता हूं तो नीडल इस साइड पे आ रही, इस साइड पे आ रही, यहां पर आ जाएगी, जीरो पे आ जाएगी इवेंचुअली। ठीक है, यस सर। जब जीरो पे आ गई तो मैंने यहां पे रीडिंग नोट कर लिया कि फॉर एग्जांपल ये 3.5 ओहम रीडिंग है। जब मैंने इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू 3.5 ओहम सेट की है तो फिर ब्रिज बैलेंस हो गया। ओके सर। अब हमारे पास बैलेंस ब्रिज की इक्वेशन इस केस में हमारे पास है, हम लिख सकते हैं R2 डिवाइड बाय R1 और R4 डिवाइड बाय R4 डिवाइड बाय R3। R3। चूंकि अभी तो ब्रिज बैलेंस है ना, तो हमारे पास जो नोन वैल्यूज हैं वो क्या है, R3 की वैल्यू 2 है, यस सर। R4 की वैल्यू 3.5 है, 3.4 है या 3.5 है। 3.5 सर। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या है, अननोन। R1 की वैल्यू तो अननोन है, और R2 की वैल्यू क्या है, 1 सर। 1 है। अब इस इक्वेशन को इजीली हम यूज कर सकते हैं, R1 विल बी इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई R3 डिवाइड बाय R4 इज इक्वल टू, R2 की वैल्यू जो है वो 1 है, R3 की वैल्यू जो है 2 है, डिवाइड बाय 3.5 ओम। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें। 0.5714। हाँ, 0.5714 ओम। सो आपका अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 0.5714। यस सर। क्लियर है? यस सर सर। पोटेंशियोमीटर सर वेरी करेंगे सर। हाँ, पोटेंशियोमीटर को वेरी करते हैं और पोटेंशियोमीटर के ऊपर स्केल बना होता है कि भाई अगर आपने इसको इतना वेरी किया तो पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस इस वक्त क्या है, वो कैलिब्रेटेड होता है। समझ आ रही स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वेश्चन पूछा? सॉरी सर आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, मैं दोबारा, अब मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? यस सर अभी क्लियर सर। अच्छा, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा था, आपके क्वेश्चन था कि पोटेंशियोमीटर जो होता है ना, इसके साथ एक स्केल बना होता है। ठीक है, जब आप उस पोटेंशियोमीटर को चेंज करते हैं तो आपको उस स्केल से आप बता सकते हैं कि इस वक्त पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। यस सर। ठीक है, तो वो नोन होती है। अब आपको समझ आ गई कि व्हीटस्टोन ब्रिज से, दिस इज वन वे ऑफ यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज बेसिकली नल मोड ऑफ मेजरमेंट। क्योंकि हम जब मेजरमेंट लेते हैं तो उस वक्त इंस्ट्रूमेंट की नीडल जो है वो जीरो पे होती है। ठीक है,
So this is null mode of measurement using a Wheatstone bridge. एक डिफ्लेक्शन मोड ऑफ मेजरमेंट भी होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है, वो आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जी जी सर, नल जो आपने बताया कि नल मोड, इसमें जो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस होगी वो हमें नोन होगी और एक अननोन होगी, इसको इसलिए नल कहते हैं कि फिर उसको बराबर करने के लिए हमें जीरो डिफ्लेक्शन देगा। नहीं, 3 रेजिस्टेंसेस हमारे पास, देखें हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस नहीं है, हमारे पास 2 कांस्टेंट रेजिस्टेंसेस हैं और एक जो है हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और उस वेरिएबल रेजिस्टेंस को, और एक जो है हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है। अब इस अननोन रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं कि हम पहले देखते हैं कि जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अभी हम रीडिंग कैलकुलेशन नहीं करते, हम कैलकुलेशन तब करेंगे कि जब ये नीडल जो है नल यानी 0 पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। अब इस 0 पॉइंट पे लाने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो इस अननोन रेजिस्टेंस की वजह से जो नीडल में चेंज आया है उसको मैं काउंटर करूंगा बाय चेंजिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस, और उसको मैं इतना चेंज करूंगा कि जब इस अननोन रेजिस्टेंस की अनबैलेंस का इफेक्ट कैंसिल हो जाए, ठीक है। जब उस अनबैलेंस का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ जाएगी और आपकी नीडल जो है नल यानी 0 पॉइंट पे आ जाएगा, और अब आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल इट नल मोड ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि हम कैलकुलेशन या रीडिंग उस वक्त लेते हैं कि जब हमारे इंस्ट्रूमेंट बैलेंस कंडीशन में आ जाए, जब हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है 0 कंडीशन पे आ जाए। सही है सर, ठीक है। That's how we measure a unknown resistance with the help of a Wheatstone bridge. इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। अब एनी क्वेश्चन, फिर मैं रिकॉर्डिंग क्लोज करके पेपर हम डिस्कस करते हैं। सर यहाँ पे तो हमने सर 4 रजिस्टर दिए सर जी सर, यहाँ पे हमने 4 रजिस्टर्स दिए सर, और इक्वेशन भी 4 रजिस्टर्स के लिए बैलेंस के लिए निकाला है, तो सर इससे हम ज्यादा भी ले सकते हैं सर, तो उसके लिए अलग इक्वेशन निकालेंगे।